Go ahead, perform readability check. The Kolkata Tower, Victor Tango, Victor Romeo Lima, 123.5. How do you read? Victor Tango, Victor Romeo Lima, Kolkata Tower, reading you 5. How do you read? Reading of 5, strength 5. Kolkata Tower, 9. Victor Tango, Victor Victor Tango, Romeo. Victor Romeo Lima. Hmm. Chalo, next Victor station. Tango, India Victor Papa. Victor Tango, India Victor Papa. Chennai, sorry, Chennai Tower, Victor Tango, India Victor Papa. On 118.9er. How do you read? Reading you 5. ठीक है. ठीक है, not a problem. Because you are traveling, तो आप आंसर नहीं भी करोगे चलेगा. Done. Reading you 5. Another station. Chennai Tower, Victor Tango, Kilo India Alpha on 123.5. How do you read? Victor Tango, Kilo India Alpha, Chennai Tower, reading you 5. How do you read? Read you 5, strength 5, Victor Tango, Kilo India Alpha. Station calling Chennai Tower. Confirm if the call sign is Kilo India Alpha. Confirm. Victor Tango, Kilo India Alpha. Affirm. ठीक है, affirm. ठीक है. Oh. Confirm is a interrogative sentence. In the reply, it should be affirm. Yes. Call Only sign is affirm. Kilo India Alpha. Only affirm. ठीक है. या फिर if you want to extend further, you can say affirm. Call sign is Kilo India Alpha. ठीक है. Okay. चलो next station. ठीक है. Not an issue. We'll move ahead with our further topic. Yesterday we have seen the situation for Mayday and Pan Pan. Everyone please confirm if that situation is well versed to you. आप लोगों को सबको समझ में आया एक एक चीज regarding Pan Pan and Mayday situation? Is that everything clear there? Clear. ठीक है. So we'll move to our next topic where we are going to see the usage of Mayday and Pan Pan condition. ठीक है. And before going there, I will need a flight plan using chart number 4. Somebody please give me a flight plan using chart number 4. ठीक है. Flight plan is available with you. ठीक है. Flight plan के format आपके पास available है. So help me to write one flight plan and use chart number 4. Go ahead. चार्ट नंबर 4 यूज करना है, वो भी ओल्ड चार्ट का, पुराना वाला चार्ट का, वर्जन 2 का नहीं. ठीक है. पुराने वाले चार्ट का चार्ट नंबर 4 यूज करना है. यस, गो अहेड. Kilo India Alpha, you can also participate if you knows the answer or if you are trying to make the answer. ठीक है. Any station can Yes, sir. participate. Participation will be appreciated. Go ahead. Just a second, hold on. Need to pick one call and then back to you.
Yes, go ahead please. I'll need a flight plan using chart number 4. ठीक है, वो भी old chart का. Go ahead, anyone. Give me the plan. आवाज आ रही है? Yes, go ahead, go ahead. ओके, आपने वो तो खोली है, लाइक पैटर्न 1 to 13. हाँ, डेली नहीं. Now you need to check in your notes. ठीक है, कि what are the 13 parameters. Done? ओके हाँ. 2 दिन हमने प्रैक्टिस करवाया ना, ओके, मैं दिखा के इधर से. हाँ, ना ट्राई योर सेल्फ, डोंट बी वरीड. मैं हेल्प करूंगा क्या क्या मिस हो रहा है. आप अपने हिसाब से जितना आपको याद रहा उसके हिसाब से आप बोलो. Whatever will be left on, I'll definitely help you to write those. And जो फ्लाइट प्लान आप बोलोगे, आप भी अपने नोटबुक में लिखो कि आपने फ्लाइट प्लान क्या बोला. एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स शैल राइट दैट प्लान. ठीक है, आप सारे लोग अपने अपने नोटबुक में उस प्लान को लिखो, क्योंकि मैं बाद में उस प्लान को हाइड आउट कर दूंगा. ठीक है. एंड दिस इज ठीक है. द स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेनिंग. ये पढ़ाने का तरीका है. आप लोग नोट करो, बाद में मेरे से कोई अगर पूछेगा कि ये क्या था वो क्या था, आई विल नॉट टेल. ठीक है, तो जो भी फ्लाइट ओके प्लान कोई कैंडिडेट देता है सब लोग नोट करेंगे उसको. डन. चलो गो अहेड. ओके, तो कॉल साइन इज 6C. आई फ्लाई. डोंट से 6C, आई फ्लाई. हाँ, हाँ, आई फ्लाई 668. 668. डन. फ्लाइट लेवल इज 250. ओके. वेट टर्बुलेंस मीडियम. हम्म. डिपार्चर एरोड्रोम इज मार्को VONP. VANP, विक्टर. अल्फा नवंबर पापा. ओके, हाँ, विक्टर अल्फा नंबर पापा. ठीक है. एंड टाइमिंग इज 0020. ठीक है. फ्लाइट IFR. ठीक है. फ्लाइट रूल इज IFR. यस. हाँ, फ्लाइट रूल इज IFR. अराइवल डेस्टिनेशन इज टू चेन्नई. विक्टर ऑस्कर माइक. विक्टर ऑस्कर माइक. चार्ट नंबर 4 में चेन्नई है. हाँ, है ना नीचे चेन्नई. चार्ट नंबर 4. नहीं, ओके, विशाखापट्टनम है. होल्ड अ सेकेंड, आई विल बी बैक. कॉल बहुत आ रहा है आज. जस्ट अ सेकेंड. Hi, sorry for the interruption in between. Okay, flight rule is IFR, and destination aerodrome we had to decide from chart number 4, right?
So what is Visakhapatnam. going to be the Visakhapatnam? क्या होगा विशाखापत्तनम का डेस्टिनेशन here? Victor Oscar, Victor Zulu. Zulu. Very good. Go ahead. डिपार्चर के बाद क्या आता है? Departure के बाद means there is no sequencing. Okay. हाँ, Departure and equipments, scheduled flight, ये सब बताओ. not that is schedule. Flight type is ठीक है. schedule. हाँ, ठीक है. And Equipments. alternate airport is Hyderabad. Victor Oscar Hotel Yankee. ठीक है, ये रहा alternate. Done. Alternate. And Equipments. the route is November 877. Yeah, 877. November 877. Very good. Equipment standard aircraft type ठीक है. Airbus A320. Mhm. Special nil. Special instruction nil. Any other information? Special instruction नहीं. Any other information? That is nil. Make it medical passenger on board. ठीक है. Medical passenger on board. I'm making it little change. Special instruction is medical passenger on board. So this is one of the flight plan with us. Done. And for that, let me review the plan for you. We are saying that we are IFLY 668 on flight level 250, where turbulence is medium. We are operating our aircraft from Nagpur to Visakhapatnam. Alternate is Hyderabad. Time of departure is 0020 under flight rule IFR. Scheduled flight hai, and all equipments are standard. Route is November 877. Aircraft type is Airbus 320 and any other information is nil. Very good. These 13 parameters are enough for planning your flight. And जैसा मैंने यहाँ पे एक एक पैरामीटर को नंबर दे दे के काउंट किया, even I knows everything. Similarly, you need to do this even if you knows the plan completely. फिर भी आप एक एक चीज को ऐसे नंबर करके प्रैक्टिस करो कि आपको all 13 parameters एक बार में याद हो पाते हैं कि नहीं. Done? So this is the plan with us. Now, hope everyone has noted the plan. Done? Everyone has noted it? So you need to open the chart number 4. Okay? This time I am sharing with the slide. Chart number 4 you need to open to look at the Nagpur airport, and some of the question I am going to say. Whoever is ready to give the answer or whoever knows the answer, please go ahead and participate for the answer. Okay? Because if you participate, then only even I'll come to know what is your actual strength on the classroom training, and if any correction is required in your pronunciation, in your answer style, then only I can suggest something. So if you knows the answer, if you are well settled to answer something in your home with pen and paper, please go ahead to write the answer. Okay? Don't hesitate and don't be shy. Question is obtain taxi clearance. Okay? Question is obtain taxi clearance. Yes, somebody please go ahead. Try करो. Yes, very good. Try करना ही है सबको. Yes. Nagpur Tower, IFLY 668. Why Nagpur Tower? Why Nagpur Tower? If ground is already there, then taxi, towing, ये सब ground को जाएगा ना? Go ahead. Nagpur Tower, IFLY 668. Again Nagpur Tower नहीं. अच्छा, tell me one thing. आप जो आंसर बोल रहे हो सिर्फ बोल रहे हो ना, लिख नहीं रहे हो, राइट? नहीं. हाँ, आप लिखो. If you commence writing only, then only you are able to make the right answer. बोलने में ये मिस्टेक बार बार होगा कि आपको पता नहीं चलेगा आंसर बोला क्या आपने, वो आपसे मिस होगा. जब तक आप उस चीज को पेपर पे लिखोगे नहीं और साथ ही साथ बोलोगे नहीं, तब तक आपको अपना मिस्टेक पता नहीं चलेगा. ठीक है? तो पेपर पे लिखो भी. इससे आपका स्पीड भी स्लो होगा और प्रैक्टिस बढ़ेगी कि एग्जाम में कैसे आंसर दिया जाता है. गो अहेड. लिख लिख के आंसर करना है. ठीक है. चलो. 1 second. Take your time. Be available with pen and paper. Start writing and speaking at the same time. Nagpur ground, IFLY 668 on 121.9.
Weak turbulence medium, IFR, Nagpur to Visakhapatnam. Again, you are not writing, right? इतना लिख चुका था. अच्छा ठीक है, go ahead. Go ahead. Nagpur ground high fly 6Z on 121.9, weak turbulence medium. Mm-hmm. And IFR, Nagpur to Visakhapatnam. Current position on apron 1 stand 5. Mm-hmm. Go Security ahead. check done. Security check done. We have Completed. passenger on board. Security Security check check completed. completed. We have passenger on board 02. Aircraft ready for departure. Request taxi permission as on priority as we have medical passenger on board. कुछ तो गड़बड़ है. Either you are not writing, either you have written first and reading it by saying. ठीक है? That is for sure. ये मुझे पता चल जाता है. ठीक है? And not even me. ठीक है? For a simple sake. ठीक है? I am not saying to you, don't worry. ठीक है? It is with everyone. होता है शुरू में. आप अगर साथ ही साथ बोलोगे नहीं और साथ ही साथ लिखोगे नहीं, ठीक है, तो ट्रस्ट मी, मैं 2 साल से आरटी पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2-2.5 साल हुए मुश्किल से. मुझे पता चल जाता है कि कौन साथ ही साथ लिख नहीं रहा और कौन साथ ही साथ बोल नहीं रहा है. थिंक अबाउट एग्जामिनर. वो तो 10-10 12 साल से सिर्फ एग्जाम ही ले रहे हैं, और वो भी साल में कितने दिन एग्जाम ले रहे हैं. आप सोच के देखो कितने टाइप के स्टूडेंट उनको मिलते होंगे. विद इन ए सेकेंड वो पता कर लेंगे कि आपने या तो पहले लिख लिया है फिर बोल रहे हो, या फिर आपने खाली बोलना पहले शुरू किया और बाद में उसको लिखोगे. मिसमैच को तुरंत कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है? सो आपको साथ ही साथ लिखना है और साथ ही साथ बोलना है. कैसे पता चलता है? विद द रेट ऑफ स्पीच. अगर आप लिख लिख के बोलोगे ना तो आप धीरे बोलोगे. ठीक है? वो आपका ऑटोमेटिक स्पीड धीरे हो ही जाएगा. डन? अच्छा ठीक है. आंसर वाज राइट बाय द वे. आंसर वाज गुड, बट ट्राई टू मेक इट ऑन राइट वे. राइट वे मतलब लिखना और साथ साथ बोलना शुरू करिए. इसमें अगर आप थोड़ा सा भी वो करोगे ना, मीन्स बेईमानी, आइल से डिसऑनेस्टी अगर इसमें दिखाओगे, एग्जाम में बहुत टफ होने वाला है. ठीक है? डोंट डू दिस. बहुत मुश्किल होगा. कुछ नहीं कर पाता है स्टूडेंट. सब कुछ आते हुए भी मिस्टेक होता है, और दैट इज फॉर श्योर. कितने भी स्मार्ट स्टूडेंट हैं, कितना भी नॉलेजेबल स्टूडेंट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा सही से, परफॉर्म नहीं कर पाता है उधर. ठीक है? बाय द वे आंसर वाज राइट. ओके, अनदर स्टेशन किलो इंडिया अल्फा, प्लीज गो अहेड विद द कॉल. Kilo India Alpha, am I audible? Yes, sir. Would you like to make a call? Sir, now I'm not comfortable with that. You are not Acha, means you are not in home with pen and paper, or you are not comfortable with Yes, what? I don't have pen and paper right now. अच्छा ठीक है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. चलो देखो, मैं एक स्टैंडर्ड आंसर देता हूँ. ट्राई टू हैव अ क्लियर लुकआउट. ठीक है? कि हाउ दिस विल गो. ऑटोमेटिक आपका स्पीड स्लो होना ही होना है. ठीक है? दैट इज फॉर श्योर. चलो, आई विल गिव अ कॉल, जस्ट हैव अ लुक. दिस कॉल विल गो टू नागपुर ग्राउंड. नागपुर ग्राउंड, देखो इतना टाइम लिया ना. I fly 668 on 121.9er. Airbus 320, weak turbulence medium. IFR Mumbai to Visakhapatnam. Current position on stand 5 apron 3. देख रहे हो कितना हो रहा है धीरे. ठीक है? stand 5 apron 3. Security check completed. Passenger on board 120. ठीक है? Aircraft ready for departure. Aircraft ready for departure. Done. उसके बाद अपना क्या रहेगा? Request taxi instructions.
Clear? I fly 668. This should be the ideal speed of call. नहीं तो आप अगर तेज बोल दोगे तो जो एग्जामिनर आपका कॉल सुन रहा है वो भी तो अपने पेपर पे नोट डाउन करता है कि आपने बोला क्या, तो वो लिख नहीं पाएगा। मैंने आपको पार्ट 1 का एक दिन एग्जाम टाइप समझाया ना कि वट एवर यू आर राइटिंग यू आर स्पीकिंग द सेम। एंड क्या होता है, जो आपके पीछे एग्जामिनर बैठा है वो अपने पास एक ब्लैंक शीट रखता है। आप जो कुछ बोलते हो वो अपने कॉपी में उसको नोट डाउन करता है एज इट इज, नो वेरिएशन। ना तो वो आपका दोस्त है ना ही वो आपका दुश्मन है, कोई वेरिएशन नहीं करेगा। आप जो बोलोगे उसको वो नोट करेगा और लास्ट में इन दोनों पेजेस को मैच करवाया जाता है। अगर इसमें डिफरेंसेस दिखेंगे तो वहां पे नंबर कटते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसमें नंबर कटते हैं, जितने लाइन का डिफरेंस है नंबर कटते हैं। तो अगर आपने कुछ बोला कम लिख दिया ज्यादा तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। आपने बोला कम, सॉरी आपने लिखा कम बोल दिया ज्यादा तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जैक्ट मैच करवाते हैं वो। ठीक है, तो आप जो बोलोगे उसको वो लिखेंगे अपने पेन एंड पेपर पे। तो आपका रेट ऑफ स्पीच इतना होना चाहिए कि उनको समझ में आए एटलीस्ट। ठीक है, चलो। So this was the standard call for taxi clearance. Now, in the reply, if ATC told, I fly 668 Nagpur ground, clear for taxi via taxiway Alpha, Charlie and Delta. Hold short runway 27. Then what is going to be your response? I fly 668, clear for taxi, holding short. नहीं नहीं, why you have told I fly 668 earlier? इसे W2 यहाँ पे इसका क्या बनता है जरूरत? नथिंग। ठीक है, डायरेक्ट गो टू द कॉल। Okay. हम्म Clear for taxi ठीक via है। taxiway Alpha, Charlie and Delta. Holding. Will hold. Will hold ठीक short है, runway 27. 27 27. and close the call। क्लोज द कॉल मतलब लास्ट में आपको अपना कॉल साइन बोलना है, अदरवाइज कॉल वोंट बी कंप्लीटेड। ठीक है, कॉल वोंट बी I कंसीडर्ड fly कंप्लीटेड। 668. ठीक है, सो दिस इज द कॉल फॉर स्टैंडर्ड टैक्सी रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड नीटली, नीट एंड क्लीन। नीटली का मतलब होता है साफ सुथरा और प्रोसेस से, जिसका जो स्टेप है उसको वो लिखना है। राइट, लेट मी सी वंस whoever the candidate present here. Acha. We have Manohar today. Manohar, whatever the answer I have written on the screen, make it noted. ठीक है, इसका आप नोट बनाओ and write it as a standard topic. If I need to ask for taxi clearance, then what should be the format? And when you complete the recorded lectures, you will get it automatically. ठीक है? Okay. Have you noted it? Yeah. Yes, sir. For now, you can. हाँ, ठीक है. If you are noted, then it's good. Otherwise, you can take a screenshot and we'll continue. Now, next question we need to see where PAN and Mayday condition shall be mixed. ठीक है? PAN and Mayday condition shall be mixed. Before going there, just have a look. This call was a standard taxi call. Done. But in the any other information section, you may see कि यहाँ पे लिखा हुआ है medical passenger on board. This should be the standard call when any other information is nil. कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो नील।
बट अगर आपके एयरक्राफ्ट में अगर वीआईपी ऑन बोर्ड है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई लाइव ऑर्गन कैरी कर रहे हो, ठीक है, कोई लाइव एनिमल कैरी हो रहा है, इन सच केसेस यू नीड टू आस्क फॉर टैक्सी इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रायोरिटी, और रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों चाहिए आपको प्रायोरिटी कॉल। तो वहां पे बोलोगे आप रिक्वेस्ट टैक्सी इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रायोरिटी। अब इस प्रायोरिटी रिक्वेस्ट के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट बोलना है। क्यों चाहिए भैया आपको प्रायोरिटी रिक्वेस्ट? मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, ठीक है, मेडिकल पैसेंजर ऑन बोर्ड, हमारे जहाज में मेडिकल पैसेंजर बैठा हुआ है, इसलिए हमको टैक्सी का रिक्वेस्ट प्रायोरिटी पे चाहिए। डन। नाउ we'll mix the condition with pan and mayday here, and we are going to see how such things are being reported. तो जो pan और mayday conditions के कॉल आएंगे वो आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन टाइप से बताएंगे, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन टाइप का एंगल देगा। कैसा? हैव अ लुक। कंडीशन देगा यू हैव साइटेड, ठीक है, यू हैव साइटेड फ्यूएल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, फ्यूएल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, ये दे दिया आपको स्पेशल कंडीशन। अब इसमें दो चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी कंडीशन का कॉल दे। एक तो होता है कि आप यहाँ पे रिपोर्ट करने जाओगे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझ के कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का, कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। सो एज पर द मेडे एंड पैन लिस्ट व्हाट हैव बीन टॉट टू यू, यू शुड फर्स्ट एनालाइज कि ये जो कंडीशन है ये है किस चीज का। आइदर ये पैन होगा, ये मेडे होगा। तो फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एनी अदर एयरक्राफ्ट, दिस इज अ पैन कंडीशन, ठीक है, दिस इज अ पैन कंडीशन, तो ये पैन कॉल होगा। दूसरा, किसको रिपोर्ट करोगे? ठीक है, किसको रिपोर्ट करोगे? अब एक चीज को अच्छे से समझना, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन छोटे आएंगे, मींस 4-5 वर्डिंग्स के क्वेश्चन आए, सिंगल पैराग्राफ के क्वेश्चन आए, तो आप आंसर करने के लिए फ्री हो। अपने आप को कहीं भी लोकेट करो कि भैया हम पार्किंग वे पे खड़े हैं और हमारे पास वाले एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको परमिटेड होता है कि किसी भी टाइप का हाइपोथेटिकल डाटा आप यूज कर सकते हो। तो आप अपने आप को किसी भी जगह पे लोकेट करवा सकते हो कि भी मैं टैक्सी कर रहा हूँ या अभी मैं एप्रन पे ही खड़ा हूँ, और जिस एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है वो मेरे सामने है, मेरे दाएं है, मेरे बाएं है, या किसी दूसरे स्टैंड पे खड़ा है, इस टाइप से। तो जितना छोटा क्वेश्चन उतनी आपको आजादी कि किसी भी टाइप के कंडीशन को, किसी भी टाइप के पोजीशन को आप उसमें इंड्यूस करो और आंसर करो, ठीक है। छोटे क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ रहता है, बट उसमें कैंडिडेट को पूरी आजादी होती है कि वो अपने आंसर को अपने हिसाब से नरेट कर पाए, अपने हिसाब से आप बना सकते हो आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन लेंदी है तो वहां पे आपको सतर्क होने की जरूरत है। लेंदी क्वेश्चन आपको समझ में तो आसानी से आएगा, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि जितना डाटा हमने क्वेश्चंस में लिखा है उतना डेटा कम से कम हमको आउटपुट में चाहिए, नहीं तो नंबर कटेगा, ठीक है। सो ऑल टू टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी नाउ, ठीक है। हाउ? जस्ट हैव अ लुक। ये क्वेश्चन कहता है कि यू हैव साइटेड अ फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। अब ये तो नहीं बताया कि जिस एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है वो कहां पे पार्क है या आप कहां पे पार्क हो। सो एवरीथिंग कैन बी hypothetically presented. So how this call can go? Have a look. Pan. Nagpur ground. I fly 668 on 121.9er. Current position on apron 3, stand 4. Sighted fuel leaking from an aircraft. Parked on stand 6, apron 3.
request appropriate action. I fly 668. Done? Very simple call. पैन 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 एज एन स्टैंडर्ड टर्म। आप लोग सारे इस कॉल को नोट करो, ठीक है? इट शुड बी नोटेड डाउन इन योर नोटबुक। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप कल से आंसर करोगे व्हेन आई विल आस्क फॉर द मॉक प्रैक्टिस। पैन 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 पैन, क्यों? क्योंकि ये पैनिक पैन कंडीशन का सिचुएशन है कि फ्यूल लीक हो रहा है किसी एयरक्राफ्ट से। एंड वी आर कॉलिंग टू नागपुर ग्राउंड, क्यों? क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े हैं अभी। I fly 668 on 121.9er। फ्रीक्वेंसी क्या है? 121.9er। देन अब देखो, इस केस में हम लोगों को ना तो वेक टर्बुलेंस बताना जरूरी है, ना ही एयरक्राफ्ट का मॉडल बताना जरूरी है, ना ही IFR और सेक्टर रिपोर्ट बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्लाइट के रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो कुछ और ही है, हम रिपोर्ट कर रहे डेंजर थिंग को। तो हमने ये सारी चीज जो कि टैक्सी वगैरह में बताया था, इस केस में उन सारी चीजों को नहीं बताया, जिसका जो रिलेवेंस उतना ही आंसर। ठीक है? हम टैक्सी परमिशन मांगते हैं, वहां पे इन सारी चीजों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने जा रहे हैं फॉर आवर इंटेंडेड फ्लाइट प्लान। हेयर नो। नाउ सीधे हम बताएं कि आवर करेंट पोजीशन इज एप्रॉन 3 स्टैंड 4। ठीक है? डन। Cited fuel leaking from an aircraft which is parked on stand 6 apron 3। यानी हम apron 3 के स्टैंड नंबर 4 पे खड़े हैं और जिस एयरक्राफ्ट से फ्यूल लीक हो रहा है वो स्टैंड 6 पे खड़ा है। जब कभी भी आप इस टाइप के सिचुएशन वाले कॉल करते हो, इमरजेंसी सिचुएशन के कॉल करते हो, आपको अपना पोजीशन भी बताना है कि आपने उस कंडीशन को किस जगह से नोटिस किया, तभी तो एटीसी उस एंगल से देख पाएगा। और जो सस्पेक्टेड है, जो सब्जेक्ट है, जो प्रॉब्लम में है, उसका पोजीशन क्या है, यानी अगर मैं मदद भेजूंगा तो किसके पास भेजूंगा, कहां भेजूं। सो आई एम एट एप्रॉन 3 स्टैंड 4 एंड दे आर एट स्टैंड 6 एप्रॉन 3। एंड हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा एटीसी करेगा। ना तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यहां से ऑपरेट करके वहां दे सकते हैं, या फिर ना ही हमारे पास कोई भी क्विक रिस्पांस टीम या किसी भी टाइप का सपोर्ट है, क्योंकि हम खुद एक विक्टिम है एज एन एयरक्राफ्ट। रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, आपको जो भी जरूरी लगे टू द एटीसी महोदय, ठीक है? आपको जो भी जरूरी लगे आप एक्शन लो और कंडीशन को न्यूट्रलाइज करो। आई फ्लाई 668। Done? So this is the standard call for a pan-pan condition where fuel is leaking from an aircraft. Hope everyone got it. समझ में आया सबको? इनिशियली ग्राउंड बोलना है ना, नागपुर ग्राउंड। बिल्कुल नागपुर ग्राउंड बोलना है, बट आफ्टर उसके पैन बाद पैन एंड में मेडे। पैन पैन नहीं नहीं नहीं, पहले पैन 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 एंड मेडे मेडे, ये दोनों कंडीशन सबसे पहले। ठीक है? ओके। पैन पैन और मेडे कंडीशन को हर एक कॉल के स्टार्टिंग में बोलना है ताकि सब लोग अलर्ट हुए। एंड कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू गाइज। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करो एज एन स्टैंडर्ड कॉल। एंड इन द रिस्पॉन्स एटीसी क्या बोल सकता है? आपने जो कंडीशन मांगा तो उसके रिस्पॉन्स में एटीसी भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही। चलो, एटीसी ने बोला आई फ्लाई 668, ठीक है, नागपुर ग्राउंड, क्विक रिस्पॉन्स टीम इज ऑन द वे। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टावर से रिस्पॉन्स आएगा आई फ्लाई 668 नागपुर ग्राउंड, रॉजर योर पैन पैन। चाहे आप मेडे कॉल दो या पैन पैन कॉल दो, सबसे पहले उसको वो एक्नॉलेज करेगा, रॉजर योर पैन पैन। ठीक है? क्विक रिस्पॉन्स टीम या क्विक रिएक्शन टीम, जो भी फुल फॉर्म आपको सुटेबल लगे दोनों बोल लो, चलेगा। क्विक रिएक्शन टीम इज ऑन द वे।
ठीक है, यानी मदद पहुंचा दिया जाएगा। तो आप भी इसके बदले में रीड बैक दोगे क्या? क्विक रिस्पॉन्स टीम इज ऑन द वे। उसने बोला ना क्विक रिस्पॉन्स टीम इज ऑन द वे, तो ठीक है, आई फ्लाई 668। डन। तो आपने रिपोर्ट किया कि आपने ये प्रॉब्लम फेस किया किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ, एटीसी ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ हेल्प भेजा, आप उस चीज का एक्नॉलेजमेंट देके क्वेश्चन को फिनिश कर दोगे। फिर उधर से एटीसी या एग्जामिनर जो भी है बोल देगा गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? समझ में आया? ऊपर वाला एक बार रिपीट करिएगा, फर्स्ट सबसे फर्स्ट पेन पेन पर। ठीक है, रिपीट, यू ओनली रिपीट दिस कॉल अवेलेबल विद योर स्क्रीन। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? पढ़ने का ट्राई करिए एक बारी, गो हेड। मैं हाँ हेल्प बट करूंगा जहां पे अटकोगे। हाँ गो हेड। इसमें ओके, पेन पढ़ो पेन पढ़ो, पेन डोंट पेन वरी। पेन पेन हम्म नागपुर ग्राउंड, I fly हम्म 668 on 121.9 current position on डेसिमल apron लाइनर। 3, हम्म 121.9 current position on apron 3 stand हम्म 4, cited fuel leaking हम्म from aircraft हम्म park on stand 6 apron 3, request एप्रोप्रिएट appropriate एक्शन। action, I fly 668. ठीक है, डन। नाउ रिप्लाई या सपोज आप ग्राउंड से आएगा या टावर से? ग्राउंड किसी को से भी कॉल दे सकते हैं। जिस नहीं नहीं नहीं, सी I think you have missed some of the lecture, that's why you are not getting it right now. हमारा जो ग्राउंड के रिगार्डिंग ठीक है, हर एक एयरपोर्ट पे एटीसी के अलग अलग डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, उसमें एक ग्राउंड भी है एक टावर भी है। अगर किसी एयरपोर्ट पे टावर है ग्राउंड नहीं है तो हम सारा कॉल टावर को देते हैं, लेकिन जी अगर किसी एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टेशन अवेलेबल है तो ग्राउंड के मुद्दे को, ग्राउंड के रिगार्डिंग डिस्कशंस को ग्राउंड को कॉल देंगे। क्लियर? ओके, ओके सर, क्लियर। इसमें फिर रिप्लाई टावर देगा। क्यों? ओके, रिप्लाई यही मैं ग्राउंड ही पूछ देगा। रहा सर, आपने बीच में बोला कि ये टावर रिप्लाई देगा, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, आपने बोला ना ओके टावर ओके, एक्नॉलेज करेगा। सॉरी फॉर दैट वर्ड। एटीसी, ठीक है, जिस भी एटीसी को आप कॉल दोगे उसी एटीसी से रिस्पॉन्स आएगा। डन। मतलब ग्राउंड स्टेशन को कॉल दिया, ग्राउंड स्टेशन रिप्लाई करेगा। ग्राउंड सेशन रिप्लाई दिया, आप जिसको कॉल करोगे वही रिप्लाई देगा। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज, लिखने का बेनिफिट देखो, सपोज मेरे मुंह से टावर निकल गया होगा फॉर अ सेक, बट जब मैंने लिखा तो राइट आंसर था। देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एसएमसी ही लिखा है, ग्राउंड ही। ठीक है। सो लिखना और बोलना साथ साथ करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। होता है बोलने में कई बार मिस हो जाता है, या एक्सप्लेन करने में ध्यान से उतर जाता है सर्टेन चीज, अगर ध्यान भटका तो। इसीलिए बोलना और लिखना दोनों जरूरी है। और ये जो हम आरटी का कॉल दे रहे हैं ना, इसको बोला जाता है रेडियो लॉग। पायलट अपने केबिन में, आप लोग देखते होंगे, एक छोटा सा नोटपैड और एक पेन रखते हैं। उनको जितने भी टाइप के पैरामीटर, टैक्सी वे, रनवे, कोई रूट, कोई रेडियल सजेस्ट किया जाता है, कोई अल्टीट्यूड, वो उस चीज को नोट करते रहते हैं। भले मैं 2 मिनट बाद भूल जाऊं कि टावर ने क्या बोला था, तो मैंने जो लिखा है वहां से रेफरेंस ले लूंगा। इसीलिए रेडियो लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट। जो भी आपने बोला आप उसको लिखो, और जो आपने लिखा उसको तो खैर बोलना ही है। मेन चीज क्या है? बोलना। आप कम्युनिकेट में बोलते हो, लेकिन उसको लिखना जरूरी है, ताकि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बाद में नहीं हो कि हमने ये बोला था, ये गलत हो गया। लिखने से उस चीज को क्रॉस चेक करके डबल श्योर किया जा सकता है। ठीक है। सो माइट बी आई सेड समथिंग रॉन्ग व्हाइल एक्सप्लेनिंग, होता है कई बार, ध्यान भटकता है ना, तो मुंह से कुछ निकल जाता है, बट when I write it, it should be corrected. Done?
clear. होप दिस वन, हाँ. नाउ ये तो था एक क्वेश्चन का कंडीशन वेयर क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल एंड ओपन टू यू कि आप किसी भी टाइप का आंसर दो कंसीडरिंग योर फैक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लिटिल लेंदी वेयर यू नीड टू बी केयरफुल कि उस क्वेश्चन में जितने भी टाइप के डेटा आपको सजेस्ट किए जाएंगे इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर, अदरवाइज नंबर कटेगा. क्या है कंडीशन? हैव अ लुक. ठीक है. यू हैव ऑब्जर्व्ड. ठीक है, आप लोग सब क्वेश्चन नोट डाउन करो एज एन स्टैंडर्ड एग्जांपल. यू हैव ऑब्जर्व्ड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन ऑयल टैंकर. ठीक है, भले फ्यूल लीक हो रहा हो, फ्यूल टैंकर को भी ना ऑयल टैंकर ही बोला जाता है, या आप लोग फ्यूल वाउचर बोलते हो, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म में इसको ऑयल टैंकर ही बोला जाता है. एज एन एविएटर वी नोस कि फ्यूल एंड ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, बट इनको ऑयल टैंकर बोला जाता है इन द आरटी एग्जामिनेशन, या फिर फ्यूल वाउचर बोलते हैं. फ्यूल इज लीकिंग फ्रॉम एन ऑयल टैंकर. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग. You are on adjoining taxiway. मैं एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है. You are on adjoining, ADJOIN, join, ING, adjoining taxiway. Show your concern. अब देखो, ये हुआ क्वेश्चन आपके पास. क्या क्या दे रहा है कंडीशन कि आपने देखा फ्यूल लीक हो रहा है एक ऑयल टैंकर से, कंडीशन नंबर फर्स्ट. दूसरा क्या है, वो जा रहा है टर्मिनल बिल्डिंग के तरफ. इजी है समझना. यू आर ऑन एडजॉइनिंग टैक्सीवे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. चौथा है शो योर कंसर्न कि आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए. ना, एडजॉइनिंग टैक्सीवे का मतलब होता है द जंक्शन ऑफ टू टैक्सीवे. इस टाइप से, सपोज दिस इज द टैक्सीवे अल्फा. ठीक है, यहां से अगर दो बन रहा है तो दिस शुड बी अल्फा 1 एंड दिस कैन बी अल्फा 2. सो यू आर हेयर ऑन एडजॉइनिंग ऑफ अल्फा 2 एंड अल्फा 1. इस टाइप से तो आप किसी भी टाइप के एडजॉइनिंग टैक्सीवे को रिपोर्ट कर सकते हो कि चार्ली एंड डेल्टा, एको एंड फॉक्सट्रॉट, इस टाइप से, या लिमा 1 लिमा 2, चार्ली 1 चार्ली 2, लाइक दैट. तो एडजॉइनिंग टैक्सीवे मतलब जहां पे दो टैक्सीवे मिलते हों. सो योर कंसर्न, आप बताओ क्या दिक्कत है आपको. या फिर यहां पे लिखा रहेगा सो सेफ्टी हैजार्ड रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट सेफ्टी हैजार्ड. इन सारे कंडीशन में ऐसा लिखा रहेगा, सो योर कंसर्न या फिर रिपोर्ट सेफ्टी हैजार्ड. तो आपको उस कॉल में मेंशन करना पड़ेगा. कैसे मेंशन करेंगे? हैव अ लुक. जितना लंबा क्वेश्चन समझना उतना ही आसान, लेकिन आपके आंसर में वो चीज झलकना चाहिए, नहीं तो नंबर कटेगा. ठीक है. नाउ how this call can go, have a look. Again, this is a pan call because fuel is leaking from an oil tanker, not directly involved to you. So how this call can go, have a look. Pan, Nagpur ground. I fly 668 on 121.9er. Currently position on adjoining taxiway Charlie and taxiway Delta. Cited fuel leaking from an Indian oil tanker. Moving towards terminal building.
मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग। मैं 2 बार आपको बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम में आप एक बार बोले हुए चीज को रिपीट नहीं करोगे, नहीं तो एग्जामिनर 2 बार लिखेगा। वो जानता है कि आपको बोलने की आदत होगी तो आप इसको रिपीट कर रहे हो, लेकिन फिर वो 2 बार लिखेगा आपकी गलती दिखाने के लिए। तो आप एक ही बार में बोलोगे। लिखने में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, डिले हुए, तो आप साइलेंटली लिखते जाओ, रिपीट करके बोलना नहीं है। जैसे मैंने 2 बार बोला ना, मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, फिर लिखते लिखते एक बार और बोला मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए रिपीट किया। मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग तीसरी बार बोला अगेन एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, दिस में बी serious fire hazard, request appropriate action. I fly 668. Now, one question is for you. RT is all about listening. It's not about reading. तो मैं जो हैंडराइटिंग अभी स्क्रीन पे यूज कर रहा हूं ना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। यू कैन सी जस्ट अबव, आपको इसमें और इसमें ही डिफरेंस दिख रहा होगा। ये देखो मैंने कितने अच्छे से लिखा है और इसके लिखने का स्टाइल क्या है। तो मैं अच्छा से लिख सकता हूं बिल्कुल, ठीक है, बट आई नीड टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। तो आप लोग जब मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, मेरे ऑडियो पर फोकस्ड रहो। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग ऑडियो पर फोकस थे। मैंने एक बार गलती से टावर बोला, आपने उसको रिस्पॉन्स दिया कि सर आपने टावर बोला, आपने टावर बोला। या इट्स गुड थिंग। आप लोग ऑडियो पे रिस्पॉन्स दोगे, और जो राइटिंग आप लिखते हो, सपोज मैंने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, ऐसी हैंडराइटिंग भी एग्जाम में चलेगा। ठीक है, एग्जाम में चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीरियस लिखना है, तो देखो मैंने इसको जिस टाइप से लिखा है, ये कहीं से भी सीरियस लिखा हुआ नहीं लग रहा है, SEVIOS करके लग रहा है। लेकिन आप अगर इसको सीरियस बोल के ऐसा भी लिख दोगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच किससे करवाएगा एग्जामिनर? अपने नोटबुक से। आपने सीरियस बोला ना, तो सपोज उसने ऐसा लिख दिया, इसको उसने सीरियस लिख दिया। अपनी हैंडराइटिंग तो सबको समझ में आती है ना, तो उसको इतना पता है कि उसने बोला सीरियस, और आपने सीरियस का SER यहां तक तो समहाउ सिमिलर लिखा। बाद में आप कर्सिव में थोड़ा सा ऐसा घसपिस भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा का पूरा वर्स्ट भी नहीं कर देना है। ठीक है, कर्सिव हैंडराइटिंग का बेनिफिट उठाइए, एग्जाम में अपने आंसर करने की स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है, नहीं तो अगर ब्लॉक लेटर में और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने लगोगे तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, और हमको आंसर विद इन 25 मिनट ही कंप्लीट करना है। तो सपोज हमको सीरियस लिखना है, तो SER यहां तक सही से लिखे, फिर ऐसा करके कर्सिव कर देंगे, चलेगा। डन? So this is the standard format for answer. Now you can see, I'll explain one by one. मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा कि हर एक कॉल का क्या है स्टेटस। नाउ हमने बोला कि वी आर करेंटली पोजीशन ऑन एडजॉइनिंग टैक्सीवे चार्ली एंड डेल्टा, यानी चार्ली और डेल्टा के एडजॉइनिंग पे हम अभी पहुंचे हुए हैं। साइटेड फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन IOCL एयरक्राफ्ट, इस चीज को मेंशन करना आप लोग बेटर समझना। ठीक है, अगर लिखा है ऑयल टैंकर तो IOCL ऑयल टैंकर, मैंने भी एयरक्राफ्ट बोला, सॉरी, IOCL ऑयल टैंकर, HPCL ऑयल टैंकर, ठीक है, रिलायंस फ्यूल्स ऑयल टैंकर। अगर आप किसी एयरक्राफ्ट के कंसर्न में बोल रहे हो कि फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट, तो वहां पे मेंशन करना अच्छा रहेगा, फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन इंडिगो एयरक्राफ्ट, फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन स्पाइसजेट एयरक्राफ्ट, इस टाइप से। सो फ्यूल लीकिंग फ्रॉम एन IOCL ऑयल टैंकर मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग। कहां जा रहा था? टर्मिनल बिल्डिंग। कैसे पता चला? क्वेश्चन से। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था कि सो योर कंसर्न, आप बताओ क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है, कहीं से फ्यूल लीक हो या फ्यूल इवापोरेट हो। दिस में बी अ फायर हैजार्ड, हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि ये फायर हैजार्ड हो सकता है। रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, अब आपको जो एक्शन लेना है भाई साहब
लीजिए, मेरा काम है रिपोर्ट करना। डन। तो देखो हमने क्वेश्चन के चारों रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, आपने ऑब्जर्व किया तो हमने भी बोला कि साइटेड। फिर क्या लिखा है, मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, यस इट इज मेंशन्ड। फिर क्या लिखा है, यू आर ऑन एडजॉइनिंग टैक्सी वे, तो हमने करंट पोजीशन में लिखा यू आर ऑन एडजॉइनिंग टैक्सी वे चार्ली एंड डेल्टा। हमने यहाँ पे अपने मन से नहीं बोल दिया कि स्टैंड 3 एप्रॉन 4, वो तब बोल सकते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप आजाद हो, कुछ भी बोलो कि टैक्सी वे पे खड़ा हो, रनवे पे खड़ा हो, बोलो, ठीक है। फिर लिखा है शो योर कंसर्न, तो आपको क्या आपत्ति है भाई, दिस इज ए फायर हैजार्ड, यही हमको आपत्ति है, रिक्वेस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन। इज दैट गुड, सबको समझ में आया ये वाला कॉल? यस सर। Kilo India Alpha, Victor Romeo Lima, is that clear? Full clear. ठीक है। नाउ इन द रिस्पॉन्स एटीसी में से, ठीक है, एटीसी में टावर, सॉरी आपका ग्राउंड, जिसको कॉल करोगे वही रिस्पॉन्स देगा। सो एटीसी में रिस्पॉन्ड लाइक दिस, I fly 668 Nagpur ground. Roger your pan. Quick response team is on the way. तो अभी रिस्पॉन्स में क्या बोलोगे, क्विक रिस्पॉन्स टीम इज ऑन द वे, आई फ्लाई 668, ठीक है, बस दिस इज द कॉल। So here you can see clearly from question number first that I had explained, and the second question lengthy, उसके conditions easy to understand, but वो सारे चीज दिखने चाहिए। अगर इन सब चीज में से एक भी चीज आप मिस करोगे, एग्जामिनर नंबर काटेगा कि जब मैंने इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि यू आर ऑन एडजॉइनिंग टैक्सी वे, तो आप एप्रोन पे कैसे रह गए, नंबर काटो इसका। जब मैंने इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि इंडियन ऑयल टैंकर मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, तो आपने बोला क्यों नहीं, नंबर काटो, इस टाइप से। तो क्वेश्चन लेंदी, इजी टू अंडरस्टैंड, डेटा ज्यादा, आंसर में वो चीज झलकना चाहिए, नहीं तो नंबर कटेगा। क्लियर, चले वाप इट आउट, मिटा दूं इसको? यस सर। ठीक है। सो दिस वाज द कॉल फॉर another pan condition. Now we'll see one condition for medical emergency, ठीक है, and here I'll show example with free condition. ये कुछ नहीं लिखा है कहाँ हो नहीं हो, बट क्वेश्चन में सिंपल सा कंडीशन देगा, ठीक है। ड्यूरिंग टैक्सी one passenger fallen sick severely, ठीक है, one passenger fallen sick severely, नोट डाउन करो सब लोग। How this may go, have a look. Pan. Medical. Nagpur ground. I fly 668 on 121.9er. Current position on taxiway Bravo. One passenger fallen sick severely. Request instructions to back to the apron and medical services on arrival. I fly 668. Now look at the call. Very easy condition.
पेन 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 मेडिकल मेडिकल कंडीशन है। आप किधर हो कुछ सजेस्ट नहीं किया है, बट लिखा हुआ है ड्यूरिंग टैक्सी, यानी आप टैक्सी वे पे ही रहोगे कहीं ना कहीं। सो करेंट पोजीशन ऑन टैक्सी वे, ब्रेवो। क्या भैया क्या दिक्कत है? वन पैसेंजर फॉलोइन सिक, हाँ तो रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू बैक टू द एप्रॉन, आगे नहीं जाऊंगा, बताओ वापस आना है। एंड जब मैं वापस पहुंचूं तो हमको मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल चाहिए। सो रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू बैक टू द एप्रॉन एंड मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल आई फ्लाई 668। इसके रिस्पॉन्स में एटीसी माइट से आई फ्लाई 668 नागपुर ग्राउंड, रॉजर योर पेन पेन। ठीक है, वो उसको पेन पेन बोल के ही एक्नॉलेज करेगा, मेडिकल उसके लिए बराबर ही है, रॉजर योर पेन पेन। ठीक है, रिटर्न टू एप्रॉन 4 स्टैंड 3 वाया टैक्सीवे चार्ली 1 एंड डेल्टा 1। मेडिकल टीम विल, ठीक है, मेडिकल टीम विल बी अवेलेबल ऑन अराइवल अब इसको एक्नॉलेजमेंट दोगे क्या? रिटर्निंग टू एप्रॉन 4 स्टैंड 3 वाया टैक्सीवे चार्ली 1 एंड डेल्टा 1। एक्सपेक्टिंग, ठीक है, ये आपको हेल्प लगी रही है ना, आपको बता रहा है कि मैं मदद भेज रहा हूं। जब दूसरे को मदद जा रहा है तो कुछ नहीं, सीधा उसको एक्नॉलेज करके छोड़ दो, ऑन दी वे मतलब ऑन दी वे। लेकिन यहाँ पे आपको वो मदद भेज रहा है और बोल रहा है कि अवेलेबल रहेगा, तो एक्सपेक्टिंग मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल, कि ठीक है मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि जब पहुंचूंगा तो मेडिकल सर्विसेज भी मिलेगा, आई फ्लाई 668। ठीक है, अभी इधर देखो, मैंने मेडिकल सर्विसेज को कैसा घुमा फिरा के ऐसा लिख दिया, चलेगा एक बार को, चलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से आंसर कर सकते हो। हैंड राइटिंग मोती जैसे हैंड राइटिंग या बिल्कुल गोल गोल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये भी सीरियस लिखा हुआ है। अराइवल को मैं और अच्छे से लिख सकता हूं, डन। लेकिन आंसर करना है और मीनिंग निकल के आना चाहिए, वहां पे हमको राइटिंग के नंबर नहीं दे रहा है कोई। ठीक है, so these are the things you need to be taken care of and answer shall be within the time। ऐसा नहीं कि हैंडराइटिंग बना बना के लिखना शुरू किए, एक ही क्वेश्चन में 25 मिनट चला गया। ठीक है, तो हमको सब कुछ मिला के चलना है। पीपल विल से कि मेंटेन द क्वालिटी, मेंटेन द क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में हम एक दिन में एक काम कर पाए, इससे अच्छा है तू 10 काम कर। अगर उसमें से 3-4 गलत भी कर देगा तो भी तो हमारे पास 6 का आउटपुट आया सही सही। हम एक को लेके क्या करेंगे क्वालिटी के चक्कर में? हालांकि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना अपना काम होता है, बट इन दिस एग्जामिनेशन वी नीड टू आंसर 5 क्वेश्चंस विद इन 25 मिनट। एक को अच्छे से आंसर करने के चक्कर में 4 और गड़बड़ा दोगे, उससे बेटर है हैंडराइटिंग तेज करो, फटाफट बोलो और टाइमली सबके आंसर करना है। डन? देन आई होप एवरीवन गेट द आंसर फॉर मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। समझ में आया सबको? क्या एडिशनल था इसमें? मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल पे चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर इसमें कंडीशन देता कि कोई पैसेंजर बदतमीजी कर रहा है तो आप बोलो वन पैसेंजर, ठीक है, बिकम्स अब्यूजिव विद द क्रू, क्रू के साथ गाली गलौज कर रहा है, अब्यूजिव विद द क्रू, रिक्वेस्ट सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन अराइवल। जब मैं पहुंचूंगा तो 2 हटे कटे मुस्तंडों को भेजो तो थोड़ा सा इसकी क्लास लगाए। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज ऑन अराइवल, बदतमीजी कर रहा है क्रू के साथ। ठीक है, तो जब मैं पहुंचूंगा तो 2 पुलिस वालों को भेजना डंडे के साथ, इसकी पिटाई करवानी है। ठीक है,
security services on arrival, medical services on arrival. ठीक है, got it? So can you read back the last sentence? Clear. Returning to हाँ apron. Returning to apron 4. Similarly, will simple give the readback of whatever the answer received from ATC. Return to apron 4 stand 3. देखो एकदम मैच करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं अच्छे से. Return to apron 4 stand 3 via taxiway Charlie 1 and Delta 1, जैसा जैसा उसने बोला था. ठीक है. एक्सपेक्टिंग उम्मीद लगा रहा हूं. ठीक है. एक्सपेक्टिंग मेडिकल सर्विसेज ऑन अराइवल. ठीक है. Okay. वेरी गुड. इसी टाइप से अगर आपको कहीं भी डाउट हो, किसी भी एरिया में कंफ्यूजन हो, बिकॉज टीचर ऑलवेज थिंक्स कि जैसा वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को वैसा समझ में आ रहा है, बट इट नॉट ऑलवेज हैपन्स. तो आपको समझने में जितने भी टाइप के तरीके मुझे आजमाने पड़े मैं आजमाऊंगा. ठीक है, बिकॉज यू हैव पेड फॉर इट. तो आपको जितने भी टाइम्स लगे समझने में कि 2 बार एक्सप्लेन करो, 3 बार एक्सप्लेन करो, यहाँ नहीं समझा वहां नहीं समझा, डोंट एवर हेजिटेट, फटाक से पूछना है. ठीक है. Now, these are the conditions for pen. Similar case will happen with May Day. The one thing is you need to change the situation type. That's all. तो एक और एग्जांपल समझते हैं. ठीक है. You have, ठीक है, you have noticed, ठीक है, या you have observed fire in tail section. ठीक है. You have observed या noticed fire in tail section. Take action. तो जब मैंने मेडे और पेन के कंडीशन पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था, फायर वर्ड जहां कहीं भी सुनो, अगर वो आपके एयरक्राफ्ट से एसोसिएटेड है, मेडे. ठीक है. क्योंकि फायर इज हैविंग ह्यूज कैपेबिलिटी, किसी को भी जला सकता है, कुछ भी कर सकता है, और आपके एयरक्राफ्ट में तो इतने सारे फ्यूल्स हैं. ठीक है. कुछ भी एक्सीडेंट हुआ दैट वुड बी बर्स्ट इमीडिएटली. ठीक है. सो हाउ दिस कॉल कैन गो, हैव अ लुक. मेडे मेडे मेडे, नागपुर ग्राउंड. क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप फ्री हो, कहीं भी अपने आप को पोजीशन करो, किसी भी एटीसी को कॉल लगाओ. नागपुर ग्राउंड, आई फ्लाई 668 ऑन 121.9er. करेंट पोजीशन. ठीक है. अभी एक चीज को ध्यान दो, ये जो आप करेंट पोजीशन बोल रहे हो ना, इसमें कुछ कुछ एग्जामिनर जो खरूस टाइप के होते हैं ना, या फिर जो दिन भर पक जाते हैं किसी किसी का आंसर सुन के, वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे. बोलेंगे करंट पोजीशन नहीं बोलो. वन स्टूडेंट हैड फेस्ड द सेम, बोलेंगे करंट पोजीशन मत बोलो. तो क्या इसके अल्टरनेट में कुछ लोग बोलते हैं प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं पोजीशन. आपको इन तीनों में जो सुटेबल लगे तीनों बोलो. भले एग्जामिनर आपको परेशान करेगा तो आप उसको एप्रोप्रिएट रिप्लाई दे दो. अगर आपको एग्जामिनर बोला कि करंट पोजीशन मत बोलो तो आप खाली पोजीशन बोलो, प्रेजेंट पोजीशन मत बोलो तो खाली पोजीशन बोलो. लेकिन रूल इज आप बोलो करंट पोजीशन या फिर बोलो प्रेजेंट पोजीशन. ठीक है. तो अगर एग्जामिनर बोलेगा कि करंट पोजीशन मत बोला करो, डायरेक्ट पोजीशन बोलो, तो आप बोलो. आपको इतना तो पता ही है ना कि 3 अल्टरनेट है, तीनों में से कोई सा भी यूज करो. तो एग्जामिनर को जो पसंद आए वैसा ही आंसर करना है, लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो इस बार को मैं चेंज करके लेता हूं ताकि आप लोगों को भी अलग अलग आंसर टाइप समझ में आए. प्रेजेंट पोजीशन. अब देखो ये कहीं से भी प्रेजेंट नहीं लग रहा है, लेकिन PRE यहां तक हमने लिख दिया और लास्ट में T लिखा, तो एग्जामिनर जब मैच करवाएगा तो समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट ही है. ठीक है. सो विल से आई फ्लाई 668 ऑन 121.9er. ठीक है. प्रेजेंट पोजीशन ऑन स्टैंड 4 एप्रॉन 3.
ठीक है। फायर इन टेल सेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, फायर इन टेल सेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, हमारे एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में आग लग गई। रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज आई फ्लाई 668 कि मैं एप्रॉन 3 स्टैंड 4 पे खड़ा हूं और फायर ऑब्जर्व किया हमने टेल सेक्शन पे, तुरंत मदद भेजिए। ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और इलोंगेट कर सकते हो, क्या? फायर इन टेल सेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, इसको आप बोल सकते हो ऑब्जर्व्ड फायर इन टेल सेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज। ठीक है। वी आर इवैक्यूएटिंग पैसेंजर along with the cabin crew, हम पैसेंजर को बाहर निकाल रहे हैं along with the cabin crew। पैसेंजर ऑन बोर्ड 120, टोटल 120 पैसेंजर हैं, एप्रॉन पे सबको उतार रहा हूं, आप फायर फाइटिंग सर्विसेज फटाक से भेजो। तो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या बोल सकता है? आई फ्लाई 668 नागपुर ग्राउंड, रॉजर योर मेडे, लाइक पेन पेन सेम रॉजर योर मेडे, कि हमने आपके मेडे के कॉल को एक्नॉलेज किया है। बताइए क्या दिक्कत हो गई भाई? रॉजर योर मेडे। ठीक है। इवैक्यूएट, या फिर आप बोल रहे हो ना कि वी आर इवैक्यूएटिंग, यानी आप ऑलरेडी शुरू कर दिए हो, तो वो बोलेगा कीप इवैक्यूएटिंग, कि ठीक है बाहर निकालते रहो, कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स with the help of cabin crew। ठीक है। फायर फाइटिंग सर्विसेज will arrive in, ठीक है, will arrive in 01 minutes। जब आपका कंसर्न है और आपको मदद चाहिए इमीडिएटली, तो वो टाइम के साथ बताएगा कि 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहा है। दूसरे के केस में क्या बोलता था? ऑन दी वे, लेकिन आपको बताएगा, आप भी उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग एक्नॉलेजमेंट दोगे। ठीक है। विल कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स, ठीक है, मेन मुद्दे का काम कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स अलोंग विद द केबिन क्रू। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अकेले तो निकाल नहीं पाएगा और हमने ऑलरेडी बोल रखा है। तो विल कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स एक्सपेक्टिंग, ठीक है, एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 01 minute आई फ्लाई 668। पूरा पक्का एक्नॉलेजमेंट 1 मिनट में आ जाएगा। यस, 1 मिनट में उम्मीद लगा रहा हूं कि आ जाए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड कॉल फॉर मेडे कंडीशन। कुछ नहीं था, सेम पेन पेन की जगह पे मेडे हो गया। और जो कंडीशन हमने बताया था पहले थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था, अभी हार्श नेचर का है। कैसे? आग लग गई, प्रॉब्लम में है, पैसेंजर्स को तुरंत निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो हमने सीरियसनेस दिखाया कंडीशन का, भाई आग लगी है, पैसेंजर्स को हटाना पड़ेगा, सीरियस माहौल है। ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट मेडे। उधर से रिप्लाई आया कि पैसेंजर को निकालते रहो, बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है। along with the help of cabin crew, cabin crew की मदद से पैसेंजर्स को निकालते रहो। फायर फाइटिंग सर्विसेज पहुंचेगा, FFS शॉर्टकट है फायर फाइटिंग सर्विसेज का। ठीक है। इसी तरह से QRT, कुछ लोग क्विक रिस्पॉन्स टीम बोलते हैं, कुछ लोग क्विक रिएक्शन टीम बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक है। लिख सकते हो QRT। फायर फाइटिंग सर्विसेज विल अराइव इन 01 minute, यानी 1 मिनट में वो मदद आपको भेज रहा है। आप भी उसका रीडबैक दोगे एज इट इज। विल कीप इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 01 minutes। अंडरस्टूड? ये एप्रॉन स्टैंड का कोई ठीक है। सीक्वेंस है? फिर स्टैंड पहले बोल सकते हो, एप्रॉन बाद में, एप्रॉन पहले, स्टैंड बाद में? नहीं, नहीं समझा, नहीं समझा। अच्छा, पोजीशन में चलेगा, हाँ। स्टैंड पहले एप्रॉन बाद में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप पहले बोल लो एप्रॉन 3 स्टैंड 4, या फिर स्टैंड 3 एप्रॉन 4, चलेगा। मैं जानबूझ के पलट पलट के बोल भी रहा हूं
ताकि आप लोगों को वेरिएंस दिखे। ऐसा आप कभी मत सोचो, एंड आई नेवर अप्रिशिएट सच, कि मैंने जो बोला वही ब्रह्मा की लकीर है। नहीं, मैंने आपको पहले बताया था ना कि बहुत टाइप के इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स आरटी पढ़ाते हैं, बहुत टाइप के लोग एग्जाम देते हैं, सबका आंसर एक्सेप्टेबल है, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंड पहले बोलो, एप्रन बाद में बोलो, चलेगा। पहले एप्रन बोलो, स्टैंड बाद में बोलो, ये भी चलेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर। Yes, sir. ठीक है, now we'll see one more condition for May Day. क्या है, have a look. Aircraft breaks on fire during taxi. एयरक्राफ्ट ब्रेक्स ऑन फायर ड्यूरिंग टैक्सी। अब ऐसा हो गया कि आप पैसेंजर इवैक्यूएट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रेक्स में आग लगी है, क्या कहते हैं, वहां पे इवैक्यूएट अगर स्टार्ट करोगे, क्या पता वो भाग के उधर ही जाए या प्रॉब्लम में आ जाए। तो इस केस में दो चीज, चाहो तो आप इवैक्यूएट करो या समझदारी दिखाओ। ब्रेक में ना आग लगी है, लैंडिंग गियर तो नहीं जल जाएगा ना विद इन सेकेंड या विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स भी चलो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका व्हील रबर का है वो पिघलेगा, लैंडिंग गियर तो स्टर्ड है, पूरा का पूरा मेटालिक रॉड है, ज्यादा से ज्यादा आपका एयरक्राफ्ट धंस जाएगा और कुछ नहीं। तो अगर इस केस में आप पैसेंजर्स को भगाओगे नहीं तो भी कुछ मेजर लॉस नहीं है। तो इतनी समझदारी दिखानी है और अपने हिसाब से आंसर कर लेना है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, लैंडिंग गियर के इमीडिएट पास में विंग भी है, कहीं उसमें आग लग गई तो हमारा एयरक्राफ्ट ब्रस्ट कर जाएगा, तो आप चाहो तो पैसेंजर भगा भी लो। ठीक है, रिमेंबर यस्टरडे मैंने बताया था समथिंग इज ग्रे एरिया, कि ना तो उसका आंसर क्लियरली यस हो पाएगा ना ही नो हो पाएगा। आप चाहो तो यस बोल के इसके हेल्प में सबूत पेश कर दो, या चाहो तो आप नो बोल के इसके हेल्प में सबूत पेश कर दो, एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मान लो वर्ल्ड लेवल का सिनेरियो है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझना, अपने अपने पोजीशन से सब सही सब गलत होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, हमने क्या किया, हमारे पास टेरर अटैक हुआ था, हमने रेस्पॉन्स में टेररिस्ट के अड्डे को उड़ाया। तो हमने तो बोला कि भैया हम तो इंसानियत का काम कर रहे हैं, कि हमने नॉर्मल वॉर नहीं किया, हमने टेररिस्ट के अड्डे को उड़ाया एज ए इंसानियत का वॉर। बट एज एन ऑफेंस पाकिस्तान उसको क्या समझ सकता है कि तुम कोई भी हो। ठीक है, ये देखो, अब ये मत समझना कि मैं एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूं। ठीक है, ग्रे एरिया इसी को बोलते हैं। पाकिस्तान क्या समझेगा, तुम कोई भी हो, अगर मैंने कहा कि मैंने अटैक नहीं करवाया मतलब मैंने नहीं करवाया, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने अटैक करवाया, फर्स्ट थिंग। दूसरा, तुम कितने भी पावरफुल हो, हमारे देश में घुसे कैसे, मैं भी मारूंगा। ठीक है, तो ये वॉर होना चाहिए। यस के रिस्पॉन्स में इंडिया बोलेगा कि भैया अगर हमको कोई परेशान करेगा तो मैं तो मारूंगा। पाकिस्तान भी बोलेगा कि हमारे देश में कोई बिना पूछे घुसेगा और किसी को मार पीट के चला जाएगा तो मैं भी मारूंगा। ठीक है, तो समथिंग इज ग्रे एरिया। आप चाहो तो उसको यस बोल के उसके सपोर्ट में कोई सबूत दे दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। आप चाहो तो नो बोल के उसके सपोर्ट में कोई सबूत दे दो, वो भी एक्सेप्टेबल है। इन दिस क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट का ब्रेक्स ऑन फायर, आप चाहो तो पैसेंजर को इवैक्यूएट करा लो, क्या बोल के कि क्या पता विंग के पास आग लग जाए तो एयरक्राफ्ट बर्स्ट हो जाए, तो उससे अच्छा है पैसेंजर को भगा दो पहले। या फिर आप दूसरी टाइप से सोचो कि व्हील में ही आग लगा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, विंग बैठ जाएगा या व्हील बैठ जाएगा, तब तक में तो फायर फाइटिंग सर्विसेज आ ही जाएगा। एक काम कर, पैसेंजर को मत निकाल, रहने दे। ठीक है, ग्रे एरिया, दोनों आंसर सही होंगे। डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर में हेल्प किस चीज का ले रहे हो, किस चीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, और समटाइम्स आंसर करने के बाद एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी कि पैसेंजर को क्यों नहीं इवैक्यूएट करवाए, तो आप बोलो सर ब्रेक्स फायर इज नॉट अ बिग डील,
फायर फाइटिंग सर्विसेज कैन डील इट विद इन 1 मिनट, सो व्हाई टू मेक पैसेंजर इन वरी, बोलेगा ओके। ठीक है, वो आपको कभी भी काउंटर नहीं करेगा, वो बस ये देखना चाहता है कि आपने अगर किसी चीज का आंसर यस दिया तो आपने अपने माइंड में क्या रखा, और क्या आप वो जो माइंड वो वाला जो आंसर दे रहे हो आप अपने समझदारी से दे रहे थे या कहीं से रट रटा के आ गए। पैसेंजर को इवैक्यूएट करेंगे तो पूछ देगा क्यों इवैक्यूएट करोगे, वो जानता है कि आंसर सही है फिर भी आपसे पूछ देगा व्हाई इवैक्यूएटिंग, आपको बोलना पड़ेगा सर इफ एयरक्राफ्ट इज इन फायर दैट मे बी अ रिस्क फॉर पैसेंजर, तो बोल देगा ओके रॉजर गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बस ये देखना चाहता है कि आप जो आंसर बोले रट रूट के तो नहीं आए थे, आपको पता है ना कि आप बोल क्या रहे हो, कैलकुलेटेड और समझदारी वाली चीज आप बोल रहे हो कि नहीं, बस वो इतना देखेगा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि अरे कुछ गलत बोल दिया क्या, नहीं, वो चेक करना चाहता है कि आप जिस चीज का स्टैंड ले रहे हो उसके सपोर्ट में आपके पास क्या सबूत है, आपको क्या लगा कि आपने ये एक्शन लिया। और आप एज अ पायलट इन कमांड, ठीक है, हमेशा याद रखना, आप एज अ पायलट इन कमांड जो भी एक्शन लोगे वो सही माना जाएगा, भले वो आपके अगेंस्ट आए या आपके हेल्प, आपके क्या कह सकते हो, आपके फेवर में आए, बट एज अ पायलट इन कमांड एज अ कैप्टन आपको जो अच्छा लगता है आप करो, करने से नहीं डरना है। ठीक है, बिल्कुल हिकअप्स नहीं, एज अ कैप्टन आपको जो लगा सही माना जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे वो गलत हो जाएगा, तुमको कैप्टन बनाया क्यों जब तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया पाकिस्तान वार। इंडियन डिफेंस फोर्सेस थिंक कि मैं पाकिस्तान के घर में घुस के उसके टेरिटरी को मारूंगा, तो पाकिस्तान के आर्मी पे भी तो प्रेशर था उसके पब्लिक का, कि बोलेगा कि तुमको मैं इतना पैसा दे क्यों रहा हूं भाई, जब बाहर से कोई आके हमको मार के चला गया तू भी मार, तूने क्यों इतना मिसाइल विसाइल खरीदा चाइना से, अमेरिका से, जिधर से भी खरीदा, तू भी मार, हारेगा जीतेगा बाद की चीज है, पहले लड़ तो। सिमिलरली एज अ पायलट इन कमांड whatever you think that is right, nobody will question you. If somebody questions, give the answer wisely. मुझे ये लगा मैंने एक्शन लिया, अब आप मेरा लाइसेंस छीन लो या मत छीनो, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट एज ए पायलट इन कमांड मुझे ये सही लगा मैं ये करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना पार्ट 1 के क्वेश्चन में, और खास करके जब इमरजेंसी और पैन कॉल आए तो एग्जामिनर आपको पीछे से पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, अपने समझदारी से आंसर देना है कि मैंने ये सोचा इसलिए ऐसा किया, वो आपको गलत सही नहीं बोलेगा, बोलेगा ओके, क्योंकि वो बस ये देखना चाहता है कि ये आंसर आपके एक्टिव माइंड सेट से आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं रट रूट के आए थे। क्लियर, तो ये वाला कॉल मैं दूंगा जहां पे पैसेंजर को इवैक्यूएट नहीं कराऊंगा। ठीक है, हाउ दैट कैन गो, हैव अ लुक। मेडे मेडे मेडे, नागपुर ग्राउंड, I fly 668 on 121 decimal liner. Position on taxiway Delta. ब्रेक्स में आग कब लग सकता है, जब आप ब्रेक मूव करवा रहे हो, ब्रेक हॉट होके आग लग सकता है। तो समझदारी देखो, ब्रेक्स हॉट हो गया है तो हम टैक्सी कर रहे थे भाई, तभी ब्रेक्स हॉट हुआ, खड़े खड़े तो ब्रेक में आग लग नहीं सकती। ठीक है, तो पोजीशन ऑन टैक्सीवे डेल्टा। ठीक है, ब्रेक्स ऑन फायर, रिक्वेस्ट firefighting services, holding present position, जहां हूं वहीं रुक रहा हूं, ब्रेक्स में आग लग गया है, रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज, आई फ्लाई 668। इसके रिस्पॉन्स में एटीसी क्या बोलेगा, आई फ्लाई 668। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो कई बार एटीसी भी क्विक रिप्लाई देगा, आई फ्लाई 668 नागपुर ग्राउंड। ठीक है, फायर फाइटिंग सर्विसेज will reach in 01 minute, ऐसा करके बोल देगा, फायर फाइटिंग सर्विसेज विल रीच इन 01 मिनट। तो आप भी बोल दोगे क्या, एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 01 मिनट, आई फ्लाई 668।
एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 01 मिनट्स। यहाँ पे देखो मेरे से लिखने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, मैं इसको ठीक करके आप लोगों को स्टैंडर्ड आंसर बता रहा हूँ। एक्सपेक्टिंग फायर फाइटिंग सर्विसेज इन 01 मिनट, I-FLY 668। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। डन। सो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, आप लोग मैं आपको कुछ कंडीशन दिखाता हूं इन माय नोट। ठीक है, व्हाट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू। डन। यहाँ पे आप देखो पेज नंबर 13-15 के आसपास कुछ तो होगा, मुझे खुद याद नहीं रहता है। ऑन पेज नंबर 15, हाँ पेज नंबर 15 ऑनवर्ड्स, 15 ऑनवर्ड्स, ये सारे कंडीशन आपको मेडे और पेन के दिए हुए हैं। आप यहाँ से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। Today I'm also going to explain how to read the questions in my note. Otherwise, that note is helping me while teaching you in the class. But if you want to have some read out, आपको खुद से पढ़ने का मन है, this note is also accessible to you, आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको पढ़ो। सबसे पहले we'll see how to navigate through the drive link what has been shared with your email. ड्राइव लिंक पे आपको 4 फोल्डर मिलेंगे। क्लास के जो पढ़ने वाले स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लास में जिस स्लाइड का यूज करके मैं पढ़ाता हूँ दैट इज नंबर 1 सेशन क्लासेस स्लाइड के नाम से अवेलेबल है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाते हैं एज एन MCQ, एज एन ऑब्जेक्टिव्स, वो सेकेंड नंबर स्लाइड में अवेलेबल है। डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड टर्म्स ये आपको दिए गए हैं स्लाइड नंबर 3 में, नोट नंबर 3 में, और मेडे और पेन के कंडीशन पे यहीं पे अवेलेबल है। चार्ट्स 1 कॉपी कलर में आपको यहाँ पे अवेलेबल है एंड आई सजेस्ट एवरीवन शैल टेक प्रिंट आउट ऑफ दीज 2 चार्ट्स। दोनों टाइप के चार्ट के प्रिंट आउट लेने हैं। एंड वट एवर द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आर देयर, जो मैंने रिकॉर्ड किया है अभी तक, those things is being uploaded on the drive link timely. आज मैंने पढ़ा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर। Okay, just a second, let me see. Confirm if it is visible. दिख रहा है अभी? नो सर। Yes, no. Now also not visible. India Victor Papa and Victor Romeo Lima. दिख रहा है क्या? ब्लैंक है, कोई स्लाइड नहीं। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नेगेटिव सर। What happened? Just a second. Hold on. Now, is that visible? नेगेटिव सर। Okay. Confirm if it is visible now. अभी दिख रहा है? दूसरी स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दिख रहा है सबको? नहीं ब्लैंक है, अभी आ गया। हाँ ब्लैक, अभी ओके सर। व्हाइट कलर का आ गया? यस सर। नहीं अभी आ गया, क्लियर है। टेल मी नाउ इफ इट इज विजिबल। अभी दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है लेक्चर्स? यस सर। तो आपको ड्राइव लिंक पे ये 4 फोल्डर मिलेंगे। ठीक है, कंफर्म इफ ऑल 4 फोल्डर्स आर विजिबल। थोड़ा सा नेटवर्क इशू माइट बी देयर, उसी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको 4 फोल्डर मिलेंगे। बुक्स और पढ़ने वाले मटेरियल इस वाले फोल्डर में रेड। ठीक है, सेशन के स्लाइड एज ए नोट नंबर 1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चन नंबर 5 एज ए नोट नंबर 2, डिफिनेशंस एज ए नोट नंबर 3, और इन दोनों चार्ट्स के आपको प्रिंट आउट लेने हैं, दोनों टाइप के चार्ट्स के, नंबर 4 वाले दोनों।
ठीक है, कलर में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स इज बीइंग अपलोडेड डेली इन आफ्टरनून। ठीक है, आज पढ़ाया तो कल आफ्टरनून तक में आपको लेक्चर नंबर नेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो ड्राइव लिंक पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले हो सकता है, 1-2 दिन बाद मैं अपलोड करूं पीछे के सारे लेक्चर्स, बट ऑन ड्राइव लिंक दैट विल बी अपलोडेड डेली। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये वाला फोल्डर है आपका, उसका नाम ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, and there are certain diagrams what I'll use while explaining the topics. That's all. Now we'll come to the note कि how to navigate through the notes. Note में you can see on page number 15, ठीक है, on the top of every pages, ठीक है, on the top of every pages आपको यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ दिखेगा 1 और VABB to NNP। तो जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ना, सारे चार्ट नंबर 1 से हैं नोट्स में, और बेंगलोर से नागपुर एक स्टैंडर्ड फ्लाइट प्लान है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कहीं पे फ्लाइट प्लान में कोई चेंज रहेगा तो वहां पे देखो फ्लाइट प्लान यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरह से फ्लाइट प्लान लिख दिया जाएगा। ठीक है, on TX side this should be the answer given by the candidates, and RX side this should be the answer might be received from ATC. ये दिख रहा है सबको? And when there are multiple questions, there you can see ऊपर में सारे टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं छोटे छोटे रेड कलर के, दिस इंडिकेट्स द क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन है लाइंड अप फॉर टेक ऑफ रोल और टेक ऑफ अबाउटिंग द टेक ऑफ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्लेयर ऑन विजिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 2, लो विजिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 3, बर्ड्स ऑन द रनवे क्वेश्चन नंबर 4। सो दीज आर द क्वेश्चंस कंडीशंस, एंड लेफ्ट साइड में उन सब के आंसर दिए हुए हैं along with the number। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, दिस कैन बी सेकंड एंड थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर है ये, फिफ्थ का आंसर है ये। तो इस टाइप से आप इस टेबल को समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रनवे इनकर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फायर इन कॉकपिट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, और ये रहा प्रोबेबल रिप्लाई। तो इस हिसाब से आप इस नोट के थ्रू कॉल्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो खुद से भी। और कल हम लोग और सारे कंडीशंस और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आप लोगों से मैं आंसर पूछूंगा फॉर द मेडे एंड पैन कॉल्स, एंड आई होप कि आप लोग पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, देन देयर इज नो बेनिफिट टू प्रोसीड अहेड विदाउट मेकिंग श्योर कि हमने जितना भी पढ़ा उतना हमको आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डेली मॉक प्रैक्टिस किया करेंगे, एंड आई अप्रिशिएट इफ एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग। गलत हो सही हो डजंट इवन मैटर, ट्रस्ट मी, डजंट इवन मैटर। आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है। ठीक है, ताकि आपका हिकअप्स टूटे, आपका आंसर करने का या स्टेज फियर टूटे, ब्रेक हो। नहीं तो आप कितने भी अच्छे से अपने मन में आंसर करके प्रिपेयर्ड रहो, आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो सेम टाइम 9 o'clock, and I appreciate you guys if you all will give the answers in the class. ठीक है, don't hesitate, do participate as much as you can. Done? That's all for today. Do some practice, have some read out. आज जो आपने अगर नोट बनाया तो उसको भी पढ़ो, समझो, और कल मैं आपसे आंसर पूछूंगा पहले, तब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। Done? Is that good for today? ठीक है, ठीक है, चलो, that's all for today. We'll see you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night.